एक कवर पेज हम आपको दिखाते हैं। इस कवर पेज को देखिए, बहुत दिलचस्प है और इसके बारे में अगर मैं पूछूं कि किसके बारे में चर्चा हो रही है तो आप बखूबी जानते होंगे। इस पर लिखा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020। आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने साझा करूंगा। लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिए आतंकवाद का केंद्र बिंदु कहां है, हर कोई आपसे कहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और अब तो अफगानिस्तान में सरकार चला रहा आतंकवादी संगठन तालिबान भी खुलेआम कह रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। लेकिन यूरोपीय देशों को पता नहीं पाकिस्तान से ऐसी कौन सी हमदर्दी है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहने पर उनके पेट में दर्द होने लगता है। यूरोपीय देशों के इस मानसिक रोग का भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जबरदस्त इलाज कर दिया है और आज आपको वो इलाज देखनी चाहिए। उनका तरीका, जिस अंदाज में एस जयशंकर ने इनका इलाज किया है। दरअसल एस जयशंकर इस वक्त ऑस्ट्रिया दौरे पर है, जहां सोमवार को उन्होंने ऑस्ट्रिया के अपने समकक्ष अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ मुलाकात की और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठा, तो एस जयशंकर ने एक बार फिर यूरोप को उसके डबल स्टैंडर्ड के लिए फटकार लगा दी। ऑस्ट्रिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना यूरोपीय देशों को सलाह दी कि आतंकवाद पर भारत के अनुभव से दूसरों को सबक लेनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का केंद्र भारत के बहुत करीब है। सुनिए एक बार। We spoke at some length on the threats to international peace and security that is posed by terrorism, including its cross-border practices, by violent extremism, radicalization, and fundamentalism. Their effects cannot be contained within a region, especially so when they are deeply connected to narcotics and illegal weapons trade and other forms of international crime. Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. जयशंकर ने यूरोप की धरती पर खड़े होकर आतंकवाद के मुद्दे पर यूरोपीय देशों को आईना दिखा दिया। जयशंकर ने तो सिर्फ इतना कहा कि आतंकवाद का केंद्र बिंदु भारत के नजदीक है। ये लाइन अपने आप में बहुत खास है और यूरोपीय देश अपने आप ही समझ गए कि जयशंकर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यानी यूरोपीय देशों को भी पता है कि पाकिस्तान ही वैश्विक आतंकवाद की जमीन है। लेकिन यूरोप की हिपोक्रेसी की कोई हद ही नहीं है। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया में एक पॉडकास्ट शो के दौरान ही एंकर ने पाकिस्तान को आतंक का एपिसेंटर बताने वाले बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की। तो एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर यूरोपीय देशों को ऐसा घेरकर जवाब दिया कि सवाल पूछने वाले एंकर की बोलती ही बंद हो गई। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. Because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of course not as a country. Well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? Does the world have to be concerned that there someday will be a war between India and Pakistan? I think the world has to be concerned that there is terrorism going on and the world often looks away. The world often feels it's not my problem.
because it's happening to some other country. I think the world needs to be concerned about how sincerely and strongly it takes up the challenge of terrorism. But has the world to be concerned about the future war between India and Pakistan? I think the world needs to be concerned about terrorism. That's what you said. Yeah, sure. Because look, if you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism, saying, let's worry about the next consequence of it. I am worried about the terrorism. बताइए, यूरोपीय देश ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। और कमाल की बात देखिए कि ये वही यूरोपीय यूनियन है जिसने इसी नवंबर में रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया था। यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय संसद में यह तर्क दिया गया कि रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, अस्पतालों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर आम जनता को निशाना बनाकर हमले किए, इसलिए उसे आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया गया। अब यूरोपीय यूनियन से कोई यह पूछे कि पाकिस्तान की सेना में अस्पतालों, स्कूलों और गांवों को निशाना बनाकर गोले दागते हुए कई तस्वीरें सामने आई हैं, और पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ करके आम लोगों को निशाना बनाते हैं, तो पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश कहने में यूरोपीय यूनियन की जुबान क्यों कट जाती है? कोई जवाब नहीं मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के देशों की हिपोक्रेसी की तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है। एक तरफ यूरोप के देश रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करते हैं और दूसरी तरफ रूस से गैस खरीदने के लिए मारे जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। यूरोप आतंकवाद की समस्या पर लगातार दोहरा रवैया अपनाता रहा है। जब तक यूरोप के अपने घर में आतंकवाद की आग नहीं लगी, तब तक यूरोप पूरी दुनिया को नसीहतें देता रहा और पाकिस्तानी आतंकवाद से जूझते भारत की बातों को नजरअंदाज करता रहा। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोप को डर सताया और उसने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारत को घेरने की कोशिश भी की गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि भारत के विदेश मंत्री ने यूरोप को आईना दिखा दिया, क्योंकि जब तक यूरोप भारत जैसे देशों की तकलीफ को नहीं समझेगा, जब आतंकवाद की जद में एक देश आता है तो बाकी देशों का भी उसके जद में आना तय होता है और यूरोप के नेताओं को यह बात समझनी होगी। जब तक यूरोप के देश अपने यहां के आतंकवाद को अलग समस्या और भारत जैसे देश के आतंकवाद को अलग समस्या के तौर पर देखेंगे, तब तक आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों का पलड़ा भारी रहेगा। यही बात आज भारतीय विदेश मंत्री ने यूरोप के देशों को समझाने की कोशिश की है और यही बात भारत हर वैश्विक मंच से दुनिया को समझाता आया है और पाकिस्तान को आईना दिखाता आया है। I read the reports on what Minister Hina Rabani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad. And Hina Rabani Khar was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice. And you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. असल में यूरोपीय देशों को लगता है कि सिर्फ उनके हितों पर होने वाले हमले ही आतंकवाद है और जिनसे उन्हें खतरा नहीं है वो आतंकवादी देश नहीं हो सकते। यूरोप की इसी घटिया सोच का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है।
क्योंकि यूरोपियन देशों को पता ही नहीं है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता क्या है, इसलिए हम उन्हें इसकी परिभाषा बता देना चाहते हैं। आतंकवाद प्रायोजक देश वो होता है जिसकी सरकार और तंत्र आतंकवादियों को दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर मदद करती है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में आतंकी संगठनों को फंडिंग, आतंकियों को ट्रेनिंग, आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवाना और अपने बॉर्डर के अंदर आतंकवादियों को पनाह देना भी शामिल है। अब कौन कह सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक देश नहीं है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सारे गुण पाकिस्तान में कूट कूट कर भरे पड़े हैं। 2001 में भारतीय संसद पर हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ था, जिसने पाकिस्तान में बैठकर इस हमले की साजिश रची थी, जिसका सरगना मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित बैठा है। यूरोप के देश क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 9/11 आतंकवादी हमले का गुनहगार और मोस्ट वांटेड नंबर 1 टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में छिपाया गया था? वो पाकिस्तान में छिपा हुआ था। यूरोप के देश क्या ये बात नहीं जानते हैं कि मुंबई में 26/11 अटैक के आतंकवादी पाकिस्तानी थे और इस हमले के मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में सुरक्षित हैं? फ्रांस तो यूरोप का ही पार्ट है। वहां पेरिस में नवंबर 2015 में सीरियल टेरर अटैक हुए, उसमें भी तो पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। अगर हम हर एक आतंकवादी हमले की डिटेल देने पर आ जाएं तो यूरोप के देशों को गिनना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये उदाहरण पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश साबित करने के लिए काफी नहीं लग रहा है तो हमारे पास और भी कई तथ्य हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आतंकवादी अड्डों और आतंकियों की सुरक्षित देशों की लिस्ट में रखा गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान सीरिया से 3 गुना ज्यादा जिम्मेदार माना गया है। एक और अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 12 विदेशी आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं। इनमें से 5 भारत को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर यूरोप के देशों को लगता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताकर भारत को ज्यादती कर रहा है, तो कम से कम उन्हें पाकिस्तान के हुक्मरानों के कबूलनामे ही सुन लेने चाहिए, जिनके मुंह से गाहे बगाहे सच निकल ही जाता है। सुनना चाहिए। We had created these jihadi groups in the 80s. We had indoctrinated them in the idea of jihad. That foreign occupation in Afghanistan, it was a religious duty to fight them. So all these groups, including Al-Qaeda, had arrived in Pakistan. And not only that, there were linkages clearly there were linkages between these groups and the Pakistani security forces. Because they had created them. When you talk about the militant groups, they still have about 30 to 40,000 armed people who have been trained and in some sort of a theater who fought either in Afghanistan, maybe in Kashmir. पता नहीं क्यों यूरोप के देशों को पाकिस्तान का सच सुनकर इतनी बेचैनी क्यों होने लगती है, जबकि तमाम वैश्विक संस्थाएं पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर मोहर लगाती रहती हैं। टेरर फंडिंग और टेररिस्ट का सेफ हेवन होने के आरोप में पाकिस्तान हमेशा से ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के रडार पर रहा है और वैश्विक आतंकवाद पर नजर रखने वाली इस संस्था ने पाकिस्तान को 2 बार वर्ष 2008 और वर्ष 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि उसे पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के पुख्ता सबूत मिले थे। अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान के आतंकवादी प्रेम को उजागर किया जा चुका है और वैश्विक आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को हाईलाइट भी किया गया है, जिसकी कॉपी मेरे साथ है, जिसको मैंने शुरुआत में दिखाया था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि इसके हेडलाइन को आप पढ़ेंगे, इसका जवाब आपको पता होगा। और अब मैं एक बार फिर से पढ़कर बता रहा हूं, इसमें जो बातें कही गई है, जो रिपोर्ट, इसमें इस पर गौर कीजिए। Regionally, however, terrorist groups continue to operate from Pakistan. यानी आतंकी ग्रुप कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? पाकिस्तान से। Groups targeting Afghanistan, including the Afghan Taliban and affiliated HQN, as well as the group targeting India. यानी अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को भी ये ग्रुप टारगेट करते हैं, including LET and its affiliated front organization and जैसे मोहम्मद continue to operate from Pakistan territory.
ये वही जैश ए मोहम्मद जिसके बारे में लगातार हम आपको जिक्र करके बता रहे थे कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट होता है और भारत में लगातार साजिशों के तार में इसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान डिड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट अदर नोन टेररिस्ट सच एज जैश ए मोहम्मद फाउंडर एंड यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मसूद अजहर एंड 2008 मुंबई अटैक प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर। यानी इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इस पर जैश ए मोहम्मद का जो मास्टरमाइंड है मसूद अजहर, उस पर और साथ ही साथ इसको जो पूरा ऑपरेट किया था साजिद मीर, इन दोनों को पाकिस्तान में यहां पे लिखा हुआ है बोथ ऑफ whom are believed to remain free in पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में आजादी से घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, Pakistan did make positive contribution to the Afghanistan peace process such as encouraging Taliban reductions in violence. Pakistan made additional progress in 2020 towards completing its financial action task force action plan but did not complete all action plan item and remained on the FATF grey list। यानी पाकिस्तान की जो दोहरी चाल रहती है, दोहरा चरित्र है, कथनी और करनी का जो फर्क है, उसने ही वो बड़े बड़े दावे तो करता रहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो करता नहीं गया, जिस वजह से पाकिस्तान 2 बार लगातार FATF के ग्रे लिस्ट में बना रहा। ये रिपोर्ट है। ये भी क्या यूरोपीय देशों को नहीं नजर आता? तो जब पाकिस्तान खुद ये कबूलता रहा है कि उसकी जमीन पर आतंकवादी तैयार होते हैं, पाले पोसे जाते हैं, उनके नाज नखरे तक उठाए जाते हैं, पूरी दुनिया से बचने की जिम्मेदारी उठाई जाती है, ऐसे में अगर भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, तो यूरोप के देशों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है और उनका मुंह क्यों फूल रहा है? ये बात समझ से परे है। ये बात तो समझ से परे है। लेकिन देखिए, यही पाकिस्तान अब किसको धमकी दे रहा है? उसी तालिबान को जिसका जिक्र इस रिपोर्ट पर है कि तालिबान को पनपाने में भी पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है, लेकिन कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, और पाकिस्तान का सामना भी अब उससे भी बड़े और कट्टर आतंकवादी देश और उसकी सरकार से हो रहा है, जिसका नाम है तालिबान, जिसकी हुकूमत अफगानिस्तान में चल रही है, जिसके उप प्रधानमंत्री अहमद यासिर ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया। बहुत दिलचस्प है, ये देखिएगा जरूर। ये फोटो आप पहचान गए होंगे, क्योंकि जैसे ये फोटो आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाला है ना, उसके बाद ही आप ये जान जाएंगे कि ये फोटो कब की है, क्योंकि ये फोटोग्राफ वर्ष 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान के फौज के सरेंडर की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, जिसके कैप्शन में तालिबान सरकार के मंत्री पाकिस्तान के गृह मंत्री को पश्तो भाषा में धमकी देते हैं, और ये वो कहते हैं कि वो अफगानिस्तान है जहां बड़ी बड़ी ताकतों की कब्रगाह बन गई। अब हम फौजी हमले का ख्वाब देखना बंद कीजिए, वरना अंजाम उतना ही ज्यादा शर्मनाक होगा जितना भारत के सामने आपके आकाओं का हुआ है। यानी तालिबान ने यह बताने की कोशिश की कि भारत पर हमला करने की जो साजिश रची थी, तो उसके बाद पाकिस्तान को किस तरह से मुंह की खानी पड़ी थी, और उस तस्वीर को साझा किया जब भारतीय शूरवीरों के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे और लगभग 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। और उस तस्वीर को साझा करने के बाद यह कहा कि पाकिस्तान ने वो गलती की थी, और अफगानिस्तान की तरफ अगर अब नजर उठा के देखेगा तो फिर से इस तस्वीर को दोहराता हुआ वक्त नहीं बीतने वाला। और इस तस्वीर को ट्वीट करके तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 को भारत के बहादुर सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए थे। और यह तस्वीर उन्हीं लम्हे की है जिसमें पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी भारतीय सेना के अधिकारियों के सामने पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर साइन करते हुए नजर आ रहे थे। और 1971 जंग जीत कर ही भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश बना दिया था, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। इस तस्वीर की पूरी कहानी तो हमने आपको बताई, और इस तस्वीर की पूरी कहानी को ही तालिबान सरकार के मंत्री द्वारा ट्वीट करने की वजह भी बेहद दिलचस्प है। एक आतंकवादी सरकार यानी कि तालिबान ने एक आतंकवादी देश यानी कि पाकिस्तान को यह धमकी क्यों दी, इसकी स्टोरी भी आज आपको जाननी चाहिए। दरअसल जब से तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर तोड़ा, तब से उसके आतंकवादियों ने पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और वो अफगानिस्तान में टीटीपी के अड्डों पर एक्शन की प्लानिंग कर रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में हमलों के बाद अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं
और अगर ये हमले बंद नहीं हुए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर इन आतंकियों को मारेगा। सनाउल्लाह ने दावा किया कि उसे पता है अफगानिस्तान के किन हिस्सों में और कहां टीटीपी के आतंकी पनाह लेते हैं, उन्हें हथियार भी वहीं से मिलते हैं। और पाकिस्तान के गृह मंत्री की इसी बात पर तालिबान सरकार भड़क गई और उसके मंत्री ने पाकिस्तान को 1971 की शर्मनाक हार की ऐतिहासिक फोटो पोस्ट करके पाकिस्तान को धमकी भी दी और जले पर नमक भी छिड़क दिया। ये वो तस्वीर है, यही वो तस्वीर है जिसको पोस्ट करके पाकिस्तान को संदेश दिया। इसके बाद अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक अलग स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि पाकिस्तान बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। अफगानिस्तान में टीटीपी की कोई पनाहगाह नहीं है और पाकिस्तान को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अफगानिस्तान कमजोर है या उसका कोई मालिक नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अपने मुल्क की हिफाजत कैसे की जाती है। अफगानिस्तान की डिफेंस मिलिट्री ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि अगर हमला हुआ तो अफगानिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। सोचिए, जो देश खुद आतंकवाद का गढ़ है, जहां दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी पलते हैं, उस देश को दूसरे आतंकवादी संगठन अब धमकी दे रहे हैं। वैसे तो इस केस में ऐसा लगता है कि अब आया पाकिस्तान पहाड़ के नीचे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको 4 सिंपल पॉइंट से भी हम समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में एलओसी को मानने से इनकार करता है, वैसे ही अफगानिस्तान भी डुरंड रेखा को नहीं मानता है। अब आप पूछेंगे डुरंड रेखा है क्या? तो डुरंड लाइन वो लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर है, यानी उस बॉर्डर लाइन को डुरंड रेखा कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान को आज अफगानिस्तान से हो रही आतंकी गतिविधियों से दिक्कत हो रही है, लेकिन खुद पाकिस्तान ने दशकों से इसी नीति को अपनाया और कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। पॉइंट नंबर 3, जैसे पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर भारत से दुश्मनी निभाता है, वैसे ही तालिबान भी पश्तूनों के हित की बात करके पाकिस्तान से दुश्मनी निभा रहा है। और पॉइंट नंबर 4, जैसे पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को यूएन में उठाकर पूरी दुनिया से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगा रहता है, वैसे ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी खैबर पख्तूनख्वा के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाकर पाकिस्तान का विरोध किया है। यानी जो चालें पाकिस्तान कश्मीर में भारत के खिलाफ चलता आया है, वही चालें अब अफगानिस्तान में राज कर रहा तालिबान खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। यानी इसलिए हमने कहा कि पाकिस्तान को अब आईना दिखाने का काम तालिबान कर रहा है।